So, in statistics, standard 11, chapter 1st, collection of data. Now, secondary data. When the data has been collected by others and used by investigator, then it is known as secondary data. So basically there are two types of data available. One is the primary data and secondary data. Whenever an investigator himself or a numerator appointed by him visit personally to the field and collect a data first time, that is called primary data. But when we collected a data from others, it is called secondary data. It means we collected a data from primary source, that is called secondary data. तो बेसिकली प्राइमरी डेटा के अंदर क्या था कि आप खुद जाते थे, आपने जो न्यूमरेटर को अपॉइंट किया था वो पर्सनली जाएगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो वो प्राइमरी सोर्सेज हैं. लेकिन जब आप किसी ने डेटा कलेक्ट किया है, आप उसका डेटा यूज कर लेते हो, तो ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. जैसे 2021 के अंदर पॉपुलेशन स्टडी होगी, तो गवर्नमेंट जो न्यूमरेटर को अपॉइंट करेगी वो पर्सनली विजिट करेगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है. लेकिन जब सेंसस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तब न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के अंदर आएगा भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है 135 करोड़ 137 करोड़. तो जब वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा आपने फाइंड नहीं किया, किसी और ने फाइंड किया है और वो डेटा आप यूज कर रहे हो. सो व्हेन द डेटा हैज बीन कलेक्टेड बाय अदर्स, इट मींस दिस डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय यू, दिस इज कलेक्टेड बाय अदर्स एंड यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, देन इट इज known as secondary data. So there are two main sources of secondary data. One is a published and second is a unpublished. So two types of secondary data available. Published means this data is available in any publications or any magazine or any newspaper, that is called published data. And some of the data are not published, but it is recorded in administrative office, that is unpublished. ये पब्लिश डेटा क्या होता है कि कोई पब्लिकेशन के अंदर होता है, कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिल जाए या वेबसाइट से मिल जाए या न्यूज़पेपर से मिल जाए, तो वो पब्लिश्ड है. अनपब्लिश मतलब वो डेटा रिकॉर्ड किया है लेकिन कभी पब्लिश नहीं हुआ, वो अनपब्लिश्ड डेटा है. जैसे आपकी नोटबुक के अंदर आप जो लिखते हो वो अनपब्लिश्ड डेटा है, क्योंकि आप लिखते हो, होमवर्क करते हो, लेकिन कहीं पर वो पब्लिश नहीं करते हो, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा है. और जब आप डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड करते हो, वो पब्लिश्ड डेटा है, क्योंकि गुजरात समाचार, संदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया वो डेटा पब्लिश करते हैं, तो वहां से ले सकते हो. सो नाउ secondary data from published sources. First, government publications. There are number of central and state government organizations which collected a statistical data and published their finding in the interest of the public. Some government publishers provide data on periodicals and regular basis. For example, Central Statistical Organization CSO, National Sample Survey Organization NSSO, Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Indian Council of Agriculture Research ICAR, Statistical Abstract of Gujarat State, Statistical Outline Gujarat State, Socio-Economic Review of Gujarat State. From the published data of such government bodies, the information about wholesale price index, numbers, import-export, vital statistics,
agriculture statistics, result of population census can be obtained. So in sources of secondary data, there are two types of sources of secondary data. One is a published and second is a unpublished. In published data, first is government publication. So mainly there are two types of government working in India. One is the state government and second is the central government. Our state government operated by Vijay Rupani at Gandhinagar, and central government operated by Narendra Modi in Delhi. Now both the government collected lots of data and published this data for public interest, like number of corona patients, recovery of corona patients, information about oxygen, information about vaccination program. Also they collected a data about population, about unemployment in India, poverty in India, inflation rate, petrol ki price. So this data is collected by both the government and they published this data on regular basis. तो गुजरात गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर अपना डेटा कलेक्ट करती रहती है. जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो कोरोना पेशेंट हर स्टेट के अंदर कितना है, रिकवरी कितनी हुई है, डेथ रेट कितना है, वैक्सीनेशन में आपने एक दो दिन से देखा हो तो इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है वैक्सीनेशन में. पर डे 85 लाख 86 लाख वैक्सीनेशन इन इंडिया. अब इंडिया में इतना वैक्सीनेशन हुआ कि कोई कंट्री की पॉपुलेशन ना हो उससे ज़्यादा तो इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है. जितनी कि यूएसए की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारा वैक्सीनेशन हो गया है. तो गवर्नमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करती है और रेगुलर बेसिस के अंदर वो पब्लिश करती रहती है. एंड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज इज ऑल्सो कलेक्टेड अ डेटा लाइक CSO, Central Statistical Organization, collected a data about unemployment in India, poverty in India, inflation rate in India. तो कई बार अगर आप देखते हो तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पोवर्टी कितनी है, वो सब इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं. जैसे अभी पेट्रोल की प्राइस का भी डेटा आ रहा है कि भाई उसमें इंक्रीज हो रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, वो भी रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनकी ऑफिस से भी रेगुलर डेटा इंडिया की पॉपुलेशन रिगार्डिंग वो लोग पब्लिश करते रहते हैं. अब उनकी ये जो मैंने लिखा है, सपोज आज उनकी वेबसाइट पर जाना CSO या NSSO, तो वेबसाइट पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा. नाउ ICAR, Indian Council of Agriculture Research, this is the institute which collected information about agriculture sectors, how much production in India in agriculture sectors. So regularly they publish this data. आप ICAR की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर बहुत सारा डेटा मिल जाएगा. Now Gujarat government having statisticals information they collected, like गुजरात गवर्नमेंट है तो वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है. अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स, कौन सी चीज का क्या प्राइस इंडेक्स है, जैसे राइस है, शुगर है, तो क्या मार्केट के अंदर रेट है, इन्फ्लेशन है, ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो वो लोग रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज वो डेटा पब्लिश करते रहते हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कोई अदर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है और आप इंडिया के अंदर ला रहे हो तो वो इंपोर्ट है. एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ लेकिन आप फॉरेन कंट्री के अंदर उसको सेल कर रहे हो, वो तो एक्सपोर्ट है. तो उसका भी डेटा रेगुलर पब्लिश होता है कि भाई इंडिया ने इस महीने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया है.
वो सब डेटा वो रेगुलर बेसिस पर वो पब्लिक करती रहती है। एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, जैसे पुअर फार्मर्स है तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है। जो पुअर पर्सन है उनको फूड फ्री में, फूड ग्रेन उसको जिसको अनाज बोलते हैं वो फ्री में गवर्नमेंट दे रही है, तो उसका डेटा भी वो रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते रहते हैं। सो यू कैन कलेक्ट अ डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगर आपको रेडीमेड डेटा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उनकी वेबसाइट हैं, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ सेकंड थिंग, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, state electricity boards, etc. regularly publish various types of important data. So semi-government means 50% ownership of government and 50% ownership of public. That is called semi-government organization, like LIC, Life Insurance Corporation. So Life Insurance Corporation regularly collect a lots of data about insurance policy, number of premiums, how many claims sanctioned by LIC. इंडिया के अंदर इंश्योरेंस जो सेक्टर्स हैं, अब LIC की ऐड देखते हो तो उसके अंदर ऐड आती है कि भाई जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो LIC से इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि लाइफ के अंदर भी रिस्क है, और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक ही आदमी कमाने वाला होता है। अगर सपोज उसकी डेथ हो गई तो फैमिली के अंदर बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इवन आपके पेरेंट्स ने भी इंश्योरेंस लिया होगा। आजकल मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत लोग ले रहे हैं। तो जो LIC है तो बहुत सारे इंडियन लोगों ने उनसे इंश्योरेंस ले रखा है। तो कितनी इंश्योरेंस की पॉलिसी इश्यू हुई, उसका प्रीमियम कितना है, डिफरेंट प्लान क्या है, वो सब डेटा उनके पास रहता है और वो रेगुलर बेसिस पर उसको पब्लिश करते रहते हैं। इवन LIC की वेबसाइट पर आप सपोज आज जाओगे आफ्टर ट्यूशन, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी प्लान्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट, फॉर एडल्ट। सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशंस। जैसे कोरोना में जितनी डेथ हो गई तो LIC ने कितना उन लोगों को अमाउंट पे किया, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम LIC's वेबसाइट, like state electricity boards in North Gujarat, in Sabarkantha, UGVCL is working, Uttar Gujarat Wijh Company Limited, and they oftenly collected a data. जैसे आपके घर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐसे नहीं आता, UGVCL है वो न्यूमरेटर को अपॉइंट करती है और आपके सभी के घर की पर्सनली विजिट करता है और आपके मीटर के अंदर वो रीडिंग लेता है कि भाई कितना बिल है। उसने वो डेटा खुद कलेक्ट किया तो वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब वो आपको बिल देता है कि भाई आपका बिल इतना आया, सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, दैट इज सेकेंडरी डेटा। UGVCL के एम्प्लॉय ने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब वो डेटा रेडी करता है और आपको देता है और वहां से जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। किसी को आपको मालूम नहीं होता कितना बिल आया, लेकिन जब वो लोग देते हैं तब आपको मालूम हो जाता है। इवन अभी तो UGVCL ने एक वेबसाइट भी बना रखी है, सीधा आप कस्टमर का नंबर आपका डालोगे तो सीधा कितना बिल आया पूरी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। सो यू कैन ऑल्सो कलेक्टेड अ डेटा फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक LIC, UGVCL, वो रेगुलर बेसिस पर अपना डेटा पब्लिश करते रहते। सपोज UGVCL का कहीं पर मेंटेनेंस है और सैटरडे को मेंटेनेंस है सपोज, और मॉर्निंग 8 to 4 PM तक लाइट नहीं आने वाली, तो वो पब्लिक नोटिस भी न्यूज़पेपर के अंदर देते हैं या SMS से इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये सैटरडे मेंटेनेंस वर्क है तो फिर लाइट इलेक्ट्रिसिटी क्लोज रहेगी, तो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड थिंग,
International publications. International organization like United Nations Organization, UNO, International Monetary Fund, IMF, International Labour Organization, ILO, publish their important data. So there are international organizations also publish a regular basis information like United Nations Organization, UNO. This is very important organization. Collected information about all the countries, about their literacy rate, about their life expectancy, about their child mortality rate, about their per capita income. And after collecting this information, give their rank, that is called HDI, Human Development Index, and regular basis they publish a data which country rank first in Human Development Index. So in last HDI, Norway ranked first as per UNO's website, and India's rank in 2014, that is 130 our rank in Human Development Index. तो जो यूनो है वो पूरे वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट करती है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट उस कंट्री के अंदर क्या है, उन लोगों की इनकम क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, फिर उसको रैंक देती है। जैसे स्कूल के अंदर रैंक दिया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे। तो यूनो ने 188 कंट्री का स्टडी किया था और फिर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन से कंट्री के अंदर ह्यूमन का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिला था। और 2014 के अंदर इंडिया का 130 रैंक था। आज भी आप यूनो की वेबसाइट पर चले जाना तो पूरे वर्ल्ड का रैंक मिल जाएगा, कौन सा रैंक, कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री है, मतलब कहाँ का लाइफस्टाइल सबसे अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई लेवल है। सेकंड इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट्स वन काइंड ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए डेवलपमेंट के लिए तो IMF उनको लोन प्रोवाइड करता है। अब आपको जानना है कि इंडिया ने कितना लोन लिया है, इंडिया की कितनी लाइबिलिटीज है, तो आप IMF की वेबसाइट पर चले जाओ और इंडिया ने कितना लोन लिया है, पाकिस्तान ने कितना लोन लिया है, चाइना ने कितना लिया है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड का लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन से कंट्री के अंदर लेबर को ज़्यादा सैलरी मिलती है, जब से लिविंग स्टैंडर्ड लेबर का हाई है, वो सब इंफॉर्मेशन है। तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे अभी इंडिया के अंदर सपोज आप काम करो और आप सपोज इंडिया छोड़कर USA या UK चले जाओ तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका जो करेंसी का रेट है वो हाई है। जैसे आप USA चले गए और आपने USA जाकर 4 आवर्स वर्क किया, सपोज 4 आवर्स आपने काम किया, 4 घंटा काम किया, तो सपोज सोचो कि उन्होंने पर आवर का आपको $10 दिया, आपने 4 आवर्स काम किया तो पर आवर का $10, तो 4 आवर्स तो $40, तो $40 आपको मिले। आज $1 की वैल्यू 75 रुपीज़ है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय आप कर दो तो 3000 रुपीज़ सपोज अप्रोक्सीमेट आपका हो जाएगा। तो उससे आपको कितना मिल सकता है वहाँ पर, वो आप सोच सकते हो। इसीलिए तो इंडिया के ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं कि जितना मिलेगा, सपोज 1 आवर का $10 देते तो 4 आवर्स काम किया तो $40 मिल जाएंगे, तो $40 है और आज डॉलर का भाव सपोज 75 है, तो 3000 पर, तो एक दिन का 3000 मिला। तो आप सोच सकते हो कि भाई 30 डेज है तो 90,000 मिलेंगे।
इसीलिए तो काफी सारे लोग इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाते हैं। जितना उनका करेंसी का रेट हाई है उतना आपको ज्यादा मिलेगा। तो आईएलओ की वेबसाइट पे मिलेगा भी कौन से कंट्री के अंदर पर आवर कितना मिल रहा है, वो पब्लिश करते रहते हैं, वहां से आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा। थर्ड थिंग्स, रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन अटीरा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली, provide data in their publications. Some of the organizations are engaged in research in different, they are making different types of research. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे अहमदाबाद के अंदर है अटीरा, कभी अहमदाबाद जाओ तो विजिट करना अटीरा। तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें रिसर्च करती रहती है, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत सारे फैब्रिक्स न्यू आते हैं। जैसे आप कपड़े जो पहनते हो उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो वो अटीरा है, वो रेगुलरली रिसर्च करती रहती है और फिर वो रेगुलर बेसिस पर वो डेटा पब्लिश करती है। अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखो तो वो कुछ ना कुछ न्यू फैब्रिक्स आ रहा है। तो अटीरा है जो रिसर्च करती है टेक्सटाइल के अंदर और फिर पब्लिक वेलफेयर दे पब्लिश दिस डेटा। जैसे इंडिया की आर्मी है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए था, तो वो जो क्लोथ है उसका जो फैब्रिक्स वो अटीरा ने रेडी किया था। तो अब लो वेट है और ज़्यादा सेफ्टी हो गई, तो अटीरा जो है इंडिया की आर्मी के पास जो अभी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसका जो क्लोथ है, उसका जो टेक्सटाइल मटेरियल है, फैब्रिकेशन है, वो अटीरा ने डिज़ाइन किया था। तो अटीरा रेगुलर बेसिस पर वो पब्लिश करती रहती है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन का प्रोडक्शन करती है और कौन सा आपको वैक्सीन लेनी चाहिए वो डेटा रेगुलर बेसिस पर वो पब्लिश करते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक चल रही है तो इंडिया की 2 लेबोरेटरी है, उन्होंने वैक्सीन रेडी कर दिया। जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक उसने कोवैक्सीन इन्वेंट की और पूना के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कोविशील्ड रेडी की। तो जैसे उन्होंने रिसर्च किया कि भाई ये वैक्सीन इफेक्टिव है कोरोना पर, फिर इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश की कि आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड के 2 डोज लेते हो तो आप पर कोरोना का जो रिस्क है बहुत कम हो जाएगा। और जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ, अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर कोरोना बिल्कुल डाउन हो रहा है और जो कंट्री के अंदर ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, उन्होंने ओपन कर दिया। तो वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, कोई भी अगर डिसीज़ है तो उसका रिसर्च होता है और कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, वो डेटा वो पब्लिश करते रहते हैं। जैसे कोरोना के अंदर फेविफ्लू एक मेडिसिन अच्छी है, वो उसका डेटा पब्लिश किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसका डेटा उन्होंने पब्लिश किया। देन सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर के अंदर है, जो सॉल्ट के रिलेटेड है उसके अंदर भी बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, उसका डेटा पब्लिश करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का हाल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और अभी डेवलपमेंट के लिए कितना ग्रोथ होना चाहिए, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कितना है, चाइना का कितना है, जापान का कितना है और हमारी इंडिया की नेशनल इनकम का कितना ग्रोथ हो रहा है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली, तो वो भी रेगुलर बेसिस पर इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा पब्लिश करते रहते हैं। सो फ्रॉम देयर पब्लिकेशन वी कैन इजीली कलेक्ट अ डेटा। उनके पब्लिकेशन जो है उसमें से बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। वैसे कोरोना में अभी उनके पब्लिकेशन नहीं आते, लेकिन वो अपना डेटा वेबसाइट पर डाल देते हैं, तो वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाएगा। नाउ लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, agriculture universities publish their annual reports. So local self government institutions, municipal corporations, taluka panchayat, jilla panchayat, gram panchayat, these are the local self government institutions. If you want to collect information about Himmatnagar population, Himmatnagar, how many population in Himmatnagar? Okay, birth rate in May month in Himmatnagar, death rate in Himmatnagar. आपको ये जानना है कि भाई हिम्मतनगर की पॉपुलेशन क्या है, मई महीना या अप्रैल के अंदर हिम्मत में कितना बर्थ रेट था, कितने बच्चों ने जन्म लिया, डेथ रेट मतलब मई के अंदर कितनी डेथ हिम्मतनगर के अंदर हुई. सो यू विल ऑल्सो कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. आप सोचते हो कि भाई उनको कहाँ से डेटा मिला, इसका सिंपल लॉजिक है, हिम्मतनगर के अंदर जितने भी लोग हैं उनका डेटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास रहता है. आपके घर पर हर साल म्यूनिसिपल का बिल आता है, टैक्स का आपको पे करना पड़ता है. अगर हिम्मतनगर के अंदर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाना पड़ेगा, तो उनको डेटा देना पड़ेगा. अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर भी मिल जाएगा. आपको जानना है कि भाई अप्रैल मई के अंदर कितनी डेथ हुई, सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, तो वहां से मिल जाएगा. जैसे अहमदाबाद है तो औडा है, AUDA, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पास पूरे अहमदाबाद के इंफॉर्मेशन रहती है. सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन. So you will collect information from that corporations like तालुका पंचायत, जिला पंचायत, you will collect information. अगर तालुका पंचायत, जिला पंचायत से के अंदर भी वहां पर आपको रेगुलर बेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तो बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिल जाएगी. लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या रिसर्च हो रहा है, सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. तो वहां पर भी बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं और वहां से आप रेगुलर बेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट वहां से कर सकते हो. जैसे यहाँ पर बनासकांठा है, वडगाम, दांता, तो वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां से आप रेगुलर बेसिस पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या रिसर्च हो रहा है, यू कैन कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज. तो रेगुलर बेसिस पर जहां पर सीड्स है वहां पर रिसर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर के अंदर रिसर्च हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट. उनके जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं, अगर आप एनुअल रिपोर्ट अच्छे से रीड करते हो तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. कोई यूनिवर्सिटी है जैसे HNG यूनिवर्सिटी में है, तो आपको जानना है कि भाई BCom के स्टूडेंट कितने हैं, BBA के स्टूडेंट कितने हैं, BCA के स्टूडेंट कितने हैं, तो आप वहां पर उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो और वो रेगुलर अपना डेटा वेबसाइट पर डाल देते हैं. जैसे अब 17 जुलाई से 10th और 12th की रिपीटर की एग्जाम स्टार्ट हो रही है. आपको जानना है कि भाई कितने रिपीटर साबरकांठा के अंदर हैं, तो गुजरात बोर्ड है उनकी वेबसाइट से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो यू कैन कलेक्ट अ डेटा. देन पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स and industries publishes the journal economic trends.
Institute of Chartered Accountants publish the journal The Chartered Accountants. The Institute of Foreign Trade publishes the journal Foreign Trade Review. So publication of Business and Commerce Organization, जैसे आपको जानना है पूरे गुजरात के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनका डेटा आपको कलेक्ट करना है, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका सेल्स क्या है, उनके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सो दे रेगुलर पब्लिश दैट जर्नल, उनका एक मैगजीन जर्नल पर मंथ आता है. इकोनॉमिक ट्रेंड्स, तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आप रीड करते हो, सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन. जैसे सिरामिक इंडस्ट्रीज है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, मेडिकल सेक्टर की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो वहां से आपको रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पब्लिश द जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो भी रेगुलर बेसिस पर अपना डेटा पब्लिश करती रहती है, क्योंकि वहां से बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा. क्योंकि अगर अकाउंट के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो उनका जो होता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एक जर्नल आता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैगजीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव सपोज सीए करते हैं, उनको पूछना कि सीए की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट देयर फाउंडेशन कोर्सेज. सो यू विल गेट इंफॉर्मेशन इन द मैगजीन द जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिशेस द जर्नल फॉरेन ट्रेड रिव्यू. तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिशेस है, वो भी रेगुलर बेसिस के अंदर डेटा पब्लिश करते रहते हैं अबाउट फॉरेन ट्रेड रिव्यू. जैसे फॉरेन के अंदर आपका जो ट्रेड है उस कौन सा ज्यादा है. जैसे आज इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज के अंदर हो रहा है. तो ये रिव्यू देखना चाहिए. पहले देखो पीपीई किट हम इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट इंडिया के अंदर हो रही है. वैक्सीन, तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने बहुत सारी कंट्रीज को एज अ गिफ्ट वैक्सीन भी दी थी. सो फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया का अदर कंट्री के साथ, उसका डेटा भी वो रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते हैं. इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री, अगर उसकी साइट पर चले जाओ, सो यू विल कलेक्ट अ फॉरेन ट्रेड रिव्यू. इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया. सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पब्लिकेशंस. सो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पब्लिशेस द जर्नल इकोनॉमिक ट्रेंड्स. आपको गुजरात के अंदर इंडस्ट्री की कंडीशन जाननी है, तो उनका जो जर्नल आता है इकोनॉमिक ट्रेंड, उसके अंदर से मिल जाएगा. आपको सीए रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट के अंदर कोई न्यू इन्वेंशन, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पब्लिशेस द जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप रीड करो तो वहां से मिल जाएगा. अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये मैगजीन. द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिशेस द जर्नल फॉरेन ट्रेड रिव्यू. तो आपको जानना है फॉरेन से क्या ट्रेड हो रहा है, तो फॉरेन ट्रेड रिव्यू से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, द डेटा रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स etc. can be collected from different newspapers and periodicals like Economics and Political Weekly, EPW, Magazine Commerce, Business Today, Financial Express. They are also important sources of getting secondary data. The main
sources of secondary data is newspapers and periodicals, but this newspaper is not available in Himmatnagar because most of the people demanded Gujarat Samachar, Sandesh, Divya Bhaskar, Times of India because our mother tongue is Gujarati, and these all newspapers are available in English language. आप डेली जब मॉर्निंग के अंदर न्यूज़पेपर रीड करते हो तो उसके अंदर से आपको बहुत सारा सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा. अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या स्टॉक मार्केट या अबाउट पेट्रोल, अबाउट गोल्ड, you will collect a information from different newspapers and periodicals. ये सब न्यूज़पेपर आपने कभी रीड भी नहीं किए होंगे. इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, EPW, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसका है, किसने अच्छा काम किया, उसका डेटा वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं. उनका सर्वे रेगुलर होता रहता है, तो वहाँ से मिल जाएगा भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कौन सा है. कॉमर्स और बिजनेस टुडे के अंदर जो है, जो बिजनेस के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कौन सी कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, मारुति कंपनी का सेल कितना है, प्रोडक्शन कितना है, रिलायंस ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, टाटा ने कितना प्रोडक्शन किया, वो सब डेटा वो रेगुलर पब्लिश करते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये स्टॉक मार्केट के अंदर है. कई लोग इंडिया के अंदर शेयर बाजार जो है, स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो कौन सी कंपनी का जो शेयर है वो हाई है, कौन लो है, वो मिल जाएगा. वैसे सपोज आपके घर में गुजरात समाचार आता है तो भी उसके अंदर एक पेज आता है पूरे स्टॉक मार्केट का. अगर उसके अंदर पूरे इंडिया की जो कंपनी है उनके मार्केट प्राइस वहाँ पर होती है, तो अगर आप रीड करो तो मिल जाएगा. एक पेज स्पोर्ट्स का भी रहता है, तो ये जो स्पोर्ट्स का पेज है वहाँ पर स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एक नॉर्थ गुजरात का पेज रहता है, उसमें एक साबरकांठा एडिशन रहता है, तो साबरकांठा की इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी. सो न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा. वहाँ से बहुत सारा आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा. Now secondary data from unpublished sources. This is our last topic. Some of the statistical data may not be published. This is called unpublished. Sometimes the data may be drawn on request from the unpublished internal records of private and public organizations which are prepared for their references. For example, salary of employees, their length of service, their education level, data regarding investment of mutual funds in public and private sector companies, PhD thesis of various universities. So some of the statistical data may not be published and that is called unpublished. कई सारा डेटा कलेक्ट किया होता है लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं करते. अगर आप वहां पर रिक्वेस्ट करते हो, सो यू विल कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. आप रिक्वेस्ट करके वहां से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हो. जैसे न्यू इंग्लिश या फेथ स्कूल हैं या सेंट जेवियर्स हैं, आपको जानना कि भाई कितने टीचर हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो डेटा होगा लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं करते. प्रिंसिपल की ऑफिस के अंदर वो रिकॉर्ड रहता है लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं करते. लेकिन अगर वहां पर आप जाए और कहे कि भाई हमारे रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ मेनी टीचर्स इन फेथ और न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, their length, their salary, their qualifications. So by giving request you can collect up from this school. अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको डेटा मिल जाएगा. लेकिन वो डेटा उन्होंने कभी वेबसाइट पे नहीं डाला कि भाई न्यूज़पेपर के अंदर नहीं दिया, तो वो अनपब्लिश है.
लेकिन रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। जैसे आप छोटे थे और आपने होमवर्क नहीं किया, तो आपने किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यार मेरे को तेरी नोट देना, मेरे को होमवर्क करना है। तो उसने आपको नोट दी, तो वो नोटबुक के अंदर से भी बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। जो आपका फ्रेंड है उसने खुद डेटा कलेक्ट किया था, उसके लिए प्राइमरी था, लेकिन आपने उसका डेटा लिया तो आपके लिए सेकेंडरी डेटा। और वो थोड़े ही वेबसाइट पे वो होमवर्क डालने वाला है, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया तो उसने आप उसको उसकी नोटबुक आपको मिली, तो वहाँ से अपने डेटा कलेक्ट कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, द लेंथ ऑफ सर्विस, देयर एजुकेशन लेवल मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड, वो भी एक स्टॉक मार्केट के जैसे इन्वेस्टमेंट है। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सी कंपनी का हाई है प्राइस, किसका लो है, वो मिल जाएगा। पीएचडी थीसिस, कई लोग बीकॉम एमकॉम के बाद पीएचडी करते हैं। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो उसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट दिया जाता है, उस पर आपको थीसिस लिखना है, लेकिन आपको थीसिस लिखना नहीं आता। आप तो आप रिक्वेस्ट करोगे यूनिवर्सिटी के अंदर के, सर जो पास्ट के जो स्टूडेंट थे उनके थीसिस मेरे को देखना है, कैसे बनाते मेरे को देखना है, उनका प्रोजेक्ट वर्क देखना है। तो लाइब्रेरी के अंदर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके सब प्रोजेक्ट वर्क और थीसिस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो भाई कैसे बनाते हैं, उन्होंने कैसे किया है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन वो डेटा उनकी लाइब्रेरी के अंदर रहता है, वो कभी वेबसाइट पर नहीं डालते, कि न्यूज़पेपर के अंदर नहीं देते, तो वो अनपब्लिश है। सो सेकेंडरी डेटा, so some of the statistical data may not be published, that is called unpublished, but we can collect this data on request from the unpublished internal records of private and public organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को डेटा चाहिए, तो वहाँ से वो डेटा आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। आपको जैसे साबर डेयरी है, साबर डेयरी में कितने वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो डेटा पब्लिश नहीं होता, लेकिन आप मैनेजर को रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, तो वो सेकेंडरी डेटा आपके लिए हो जाएगा।